everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me, guys. And also thank you so very much for subscribing to the channel, supporting my work. Deepest gratitude. Thank you so much. And please keep your requests coming in. And today आज के वीडियो में हम आप ही का एक रिक्वेस्ट लेंगे. You wanted to know Shahnaz Gill, you know, more up and close. So let's do a reading on her. Actually, I wanted to do a reading on Priyanka Chopra today, but I thought I just saw this request and I thought, why not, you know, do this reading on her. It's going to be a little break from, you know, the Bollywood that we have been doing, and it's going to be a fresh energy also. And besides, I do like this girl. I think she has this some you know, something different, because I think she's very herself. और जब इसने Big Boss में काम किया था, I have seen that Big Boss. That time I used to watch Big Boss, and I like the fact that she वो जैसी है वो वैसी ही रहती है. I don't know how things are now, but I have watched that Big Boss couple of years back. I think that was in 2019, right? So let's do this reading on her. Shahnaz Gill, Priyanka Chopra को हम next time cover करेंगे. And of course, do let me know what you think about the readings. And also let me know if you have any feedback, guys. Do you want me to do the readings a little shorter? You know, maybe within 20 minutes, 30 minutes. Because I do understand that the readings are very lengthy. But yes, I take you through the whole process of, you know, how I connect the dots, the confusions, the aha moments, the breakthroughs and everything. So which is what, you know, kind of you go through each and every, you know, you go through the journey. You're part of the journey, right? So do let me know if you want to make me if you want me to make the videos a little shorter, या फिर जो भी आपका feedback है आप मुझे बताइए. And let's get started with exploring, understanding Shahnaz Gill. Okay, so let's do this. God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides, Madhurke Makali, Om Ganeshaya Namah, Jai Pachungbali. My dear friend, dear Spirit of all my guardian angels, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us to help us understand Shahnaz Gill, taking her through her personality. What is this? This is the Fool in reverse. Okay, let me put this here so that you can see the card. And we have the Empress in reverse. This is Nine of Pentacles in reverse, actually. Nine of Pentacles has a very similar energy, that of Queen of Pentacles. Three of Cups at the subconscious level. Past में क्या है? Two of Wands है, makes sense. And conscious level में what is she? She is King of Pentacles. Okay. What about the future? Ace of Wands. ये वाला अभी हम shuffle करते हैं, हमको मिला था ये card. And this is a little blocked. What do we have as our attitude? Six of Swords. Environment में है Nine of Swords. How she feels, what she hopes, what she fears, Knight of Pentacles. And what's the last card? Six of Cups. Let's see at the back of the deck हमें क्या है. Three of Wands है और ये क्या है? Page of Pentacles in reverse. Okay. So what do we know about her? Excuse me. What we can do is just keep it here.
शहनाज गिल, किस तरह की पर्सनालिटी है शहनाज की? तो हमने स्टार्टिंग में व्हेन वी स्टार्टेड हर रीडिंग, व्हाट डू वी से, व्हाट डिड वी जस्ट काइंड ऑफ recalled what we know about her. So we said that she is like very out of the box, she is very herself. उसको जो भी अच्छा लगता है, जो भी फील करती है, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट और शी इज़ वेरी इम्पल्सिव इन काइंड ऑफ रिएक्टिंग द सेम वे. बिग बॉस में भी हमने देखा था कि इफ़ शी वॉज पॉजिटिव अबाउट सिद्धार्थ, तो शी वॉज पॉजिटिव एंड शी वॉज वेरी अपफ्रंट अबाउट इट. और वो उतना कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इस चीज़ के बारे में नहीं सोचती है ना. जब आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हो, तभी तो आप जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं. जैसे कि आप बहुत इमोशनल हो और तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हो विदाउट इवन बॉदरिंग कि व्हाट हाउ पीपल विल सी यू, परसीव यू, ये सारी चीज़ें. तो इमोशनल लोग काफ़ी बहुत ही मुझे लगता है दिल के साफ होते हैं. यहाँ पे फूल इन रिवर्स आपको यही बता रहा है कि शी टेक्स अ जंप इनटू द अननोन for the fun of it, because she operates from her emotions. Because आप emotions, because you are governed by your emotions, you are emotional, you are led by your emotions. तो आप क्या करते हो, आप बोल सकते हैं कि आप यू आर मोर प्रोन टू रिएक्टिंग दैन रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि रिस्पॉन्ड करने के लिए यू हैव टू होल्ड बैक योर इमोशंस, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, अंडरस्टैंड प्रॉस कॉन्स, बी अ लिटिल कैलकुलेटिव एंड देन रिएक्ट, है ना. तो वो रिएक्शन, तो वो रिस्पॉन्ड हो जाता है, रिस्पॉन्स हो जाता है. पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि as we said, as we know also that she is very emotional, she is very abrupt, she is very impulsive. वो बहुत अपने दिल से काम लेती है. तो यहाँ पे भी आप देखो उसकी वही एनर्जी आ रही है, like throwing caution to the wind. अब ये upside अब अगर ये upright होता तो it was like कि okay, but you are fun loving, you like to live your life एंड you don't think too much. बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन भी आ जाता है. लेकिन जब ये अपसाइड हो गया तो यही सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, थोड़ी सी आउटब्लोन हो गई हैं, यानी कि थोड़ा सा रेकलेसनेस है वहाँ पे. However, people have really loved her for her honesty, for her authenticity, for she being very honest about her emotions, about her feelings. जैसे कि सिद्धार्थ के केस में शी रियली लव्ड हिम, तो शी वेंट अबाउट प्रोक्लेमिंग हर लव फॉर हिम, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट हिम, नॉट रियली बॉदरिंग कि सिद्धार्थ, क्योंकि आपने देखा होगा कि सिद्धार्थ कभी कभी उसको दुत्कार देता था या फिर ही यूज्ड टू फील वेरी किडिश कि ये क्या कर रही है. यू रिमेंबर दैट थिंग, बिकॉज दैट वॉज वेरी किडिश फॉर हिम. बट शी वॉज लाइक कि जैसे फूल, दिस इज अ फूल्स का कार्ड. सो शी हैज़ दिस फूलिश, आप बोल सकते हैं कि इमेच्योरिटी, बट शी इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेश लाइक. तो क्या होता है कि क्योंकि इसमें फूल की एलिमेंट इसके कोर में है, इसीलिए क्या होता है, शी गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ द थिंग्स. अब ये फूल का एलिमेंट है उसमें, तो कभी कभी इसके people will love her for who she is, because usually क्या होता है कि लोग बहुत guarded होते हैं. You don't want to appear as कि You don't want to appear as foolish, you don't want to appear as vulnerable. जैसे कि उसने जब अपना प्यार इजहार किया सिद्धार्थ के लिए, और इतना ज़्यादा किया, like she was like I want you to want you, because I've seen that episode, I have seen that season, so I know it. And she was very stubborn, even kiddish कि she is telling him कि तुम किसी और को प्यार नहीं कर सकते, you have to be my, इस तरह की चीज़ें बोलती थी ना वो. तो this is immaturity, this is a very foolish, फूल की एनर्जी है ये. बट फूल की एनर्जी के कारण ही क्या होता है कि कभी कभी ये एक्सट्रीम भी हो जाता है, एंड वी रिमेंबर शी गोइंग रियली ओवरब्लोन एंड शी रियली इरिटेटिंग लॉट ऑफ पीपल इन द फैमिली, बट दैट डजंट मैटर. बट शी ऑल्सो इरिटेटेड सिद्धार्थ एंड ऑल दैट. तो इसके ये फूलिश एलिमेंट के कारण लोग इसको पसंद भी करते हैं. शी इज़ लव्ड बाई पीपल ऑल्सो बिकॉज शी लुक्स वेरी चाइल्ड लाइक. she comes across as very authentic, very innocent. बट कभी कभी वो ज़्यादा हो जाता है तो पीपल ऑल्सो गेट वेरी इरिटेटेड, या फिर हाउ इमेच्योरिश इज दैट. तो ये जो इसकी एनर्जी है ना शहनाज गिल की, इसके कोर में है. शी इज़ दिस एनर्जी, impulsive, emotional, innocent, childlike,
taking actions without really thinking कि इसका क्या pros and cons होगा. She is not calculative. तो क्या होता है, लोग भी पसंद करते हैं. She is very authentic, she is very honest, and at times her actions get adverse reaction also because so this is what is sitting right at the center of Shahnaz Gill, who she is. जो कि हमको पता है कि this is what the girl is all about. You know, jumping, enjoying her life, living her life to the fullest. अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा कॉशन देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप गिर भी सकते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज. सो सम वेरी ऑल दीज थिंग्स, इनोसेंट, चाइल्ड लाइक, फन लविंग, इमोशनल, enjoying the life, but yes, also prone to extreme behaviors, क्योंकि यहाँ पे foolishness भी है. Alright, तो यहाँ पे she is more like a child woman आप बोल सकते हैं. ओके और यहाँ पे क्या है, 9 of Pentacles. Now this is a very beautiful equation or dynamics coming from the center of the reading. So here is a child woman, and here is, you know, a child woman making transition into this 9 of Pentacles elegance. Now this is a child woman making an entry in, you know, stepping into her this avatar, you know, very elegant, very sophisticated, very slim, you know, very appropriately talking, napatula, calculate करके बात करना, with all that style, sophistication and all that. So this is 9 of Pentacles is that. And 9 of Pentacles की energy कब आती है? The 9 of Pentacles is not something that you are born with. You can be born with the Queen of Pentacles, but 9 of Pentacles is a total self-made कार्ड. इसकी जो एनर्जी होती है वो है सेल्फ मेड. लाइक you're not born as 9 of Pentacles, you become 9 of Pentacles. You work hard on yourself to become 9 of Pentacles. तो क्या हमने देखा, पर यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लॉक्ड एनर्जी है. सो शी इज मोर लाइक, यू नो, स्टेपिंग इन टू दिस एनर्जी ऑफ सोफेस्टिकेशन, मोर फ्रॉम अ चाइल्ड लाइक टू मोर लेडी लाइक. यू गेट इट व्हाट आई मीन. सो हियर शी इज मेकिंग दिस ट्रांजिशन. तो क्योंकि अभी शी इज स्टिल मोर चाइल्ड लाइक, तो येस वो पूरी तरह से दिस शी हैज नॉट गॉट इन टू दिस लेडी लाइक अवतार. वेरी सोफेस्टिकेटेड, वेरी एलिगेंट, वेरी अप्रोप्रिएट, बट येस फिजिकली तो हमको पता है कि शी हैज डन ऑल हर डाइटिंग एंड शी हैज डन ऑल हर एक्सरसाइज एंड शी लुक्स very slim, fit and all. So basically physically very much in her avatar, but you also need that emotional maturity. Okay, physically to yes you can do it, but emotionally also you have to become mature, you know, not react, learn to respond, to be you know, take your time to react and all that, to have your guards out, behave yourself. So this is a more transition phase that she is going through. Physically तो we see the transition already, but emotionally transition आया है कि नहीं, I don't know. Is she more, you know, more takes her own time to react, or is she still the same thing and all that? तो वो चीज़ें हैं. तो transition हो रहा है, or maybe it could be just 50-50 while she has transitioned physically, but she still continues to be the same person at heart. ये भी हो सकता है क्योंकि it's like more 50-50. Okay. Who is at the subconscious level? Subconscious level में इसकी जो ये carefree energy आप कोर्ट में देख रहे हो ना, at the center of her readings, center of her personality, ये कहाँ से आती है? ये इसके मस्ती से आती है. Subconscious में काफ़ी मस्ती है. तो she is a person जिसको लगता नहीं है कि you know there are any limiting beliefs. And how wonderful is that? See what happens when you don't have the limiting beliefs. कितनी बारी मैंने रीडिंग की है और देखा है कि लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन लिमिटिंग बिलीव के कारण ना थिंग्स आर नॉट हैपनिंग. और यहाँ पे शी इज़, यू नो, शी इज़, आप बोल सकते हैं कि वो बुद्धू जैसा बिहेव करती है, या फिर शी इज़ व्हाट शी इज़. शी इज़ नॉट हाई, शी इज़ नॉट स्केर्ड ऑफ बीइंग हु शी इज़. जो भी आता है वो बोलती है, एंड इट्स लाइक वो मीम भी बन जाता है, पीपल एन्जॉय भी करते हैं, हर चीज़ इट्स फन डू. सो दैट इज़ द पावर ऑफ बीइंग ऑथेंटिक. नाउ शी इज़ नॉट, यू नो, यहाँ पे कोई बनना नहीं है. शी इज़ जस्ट हु शी इज़. And she is who she is because she is fun loving girl at the subconscious level. कोई limiting belief यहाँ पे नहीं बैठा है, and that is so interesting, and that is what it's very pleasing also कि देखने के लिए कि subconscious level में उसके कोई limiting belief नहीं बैठा है. There is fun, there is मस्ती, there is people getting together and talking their hearts out. You know, this is more like a pajama party kind of a subconscious जहाँ पे खाली मस्ती है. और क्योंकि subconscious आपका बहुत ही fun loving है, कोई darkness नहीं है, light है, मस्ती है, music है, songs है, dance है, party है,
तो बेसिकली मस्ती है, यू नो, लाइफ को इंजॉय करने वाली एनर्जी है, तो वही उसके पर्सनालिटी में भी छन छन के आ रही है. ऑल राइट, वेरी गुड. पास्ट की एनर्जी हम देखें अगर उसका, you know, her past so far was always about, you know, becoming something. Two of Wands is always about, you know, moving out from where you are, trying to find your place in the world, trying to, you know, being, you know, considering lot of options कि कहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए. सो शी हैज़ बीन वेरी फोकस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स कि आगे कैसे बढ़े, क्या मुझे अपने छोटे से, माने कि जहाँ भी वो नॉर्थ में रहती थी, पंजाब में रहती थी, तो पंजाब से बाहर मुझे निकलना चाहिए. एंड देन शी, यू नो, स्टेप्ड आउट ऑफ हर स्टेट एंड मूव्ड इनटू मुंबई एंड ऑल दैट. तो शी वाज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट एक्सपैंडिंग हर होराइजन्स, बाउंड्री. और फन लविंग, फंडू तो है ही एट द कोर. ये सबकॉन्शियस लेवल में शी इज़ वेरी फंडू, वेरी गुड विथ मिंगलिंग विथ पीपल, यू नो. ऐसा कुछ नहीं है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि कुछ भी इसमें है ना, जैसे कि मान लो कि इंग्लिश का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी, ज़्यादा पंजाबी बोलती है तो कुछ हिंदी बोल नहीं पाए, इंग्लिश नहीं बोल पाए, तो उसको इस चीज़ का हेजिटेशन नहीं होता है. शी इज़ कंफर्टेबल इन हर स्किन. ओके, तो वो कहीं भी जाके आराम से लोगों से दोस्ती कर सकती है. अगर दोस्ती करने वाले लोग हैं तो दोस्ती कर लिया, अगर कोई दोस्ती नहीं भी कर रहा है तो शी इज़ फाइन विद दैट ऑल्सो, यू नो. शी कैन गिव बैक. तो उसे कोई इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कुछ इनसिक्योरिटी कुछ नहीं है, बिकॉज बहुत ही फन लविंग एनर्जी एट द सबकॉन्शियस लेवल में है. तो क्योंकि बाहर जाने से, स्टेप आउट करने से हेजिटेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी शी इज़ वेरी प्रोग्रेसिव. बाहर जाना चाहती है, एक्सपैंड हर होराइजन्स, यू नो, शी वॉन्ट्स टू एक्सपैंड हर होराइजन्स. शी इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ हर शूज़ एंड आउट ऑफ हर होम. तो वो चीज़ें हम देख रहे हैं इसकी पर्सनैलिटी में. और यहाँ पे ट्रांजिशन भी देख रहे हैं फ्रॉम अ चाइल्ड वुमन टू दिस सोफिस्टिकेटेड लेडी लाइक थिंग. ऑल राइट, कॉन्शियस लेवल में हम देख रहे हैं कि शी इज़ वेरी, कॉन्शियस लेवल में हम देख रहे हैं कि शी हैज़ क्रिएटेड समथिंग फॉर हरसेल्फ. Conscious level is more like, you know, how people see you. So how people see you, that yes, you have come a long way. यहाँ पे back of the deck में देखिए Page of Pentacles है in reverse. यानी कि yes, you want to create some kind of you know, you want to have some name, fame, you want to make big for yourself, you want to earn the money, create good stability for yourself. थोड़ा सा नाम, शोहरत, पैसा, ये सारी चीज़ें आप करना चाह रहे हो. एंड यहाँ पे वो क्लूलेस है, ठीक है. तो बचपन से ही ये चीज़ चाहती होगी शायद वो, पर जैसा होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं पर हाउ टू गो अबाउट इट. लेकिन यहाँ पे शी इज़ लाइक, यहाँ पे उसे कुछ रास्ता तो दिख नहीं रहा है. सी, दिस इज़ लाइक रिवर्स, बट येट रिवर्स में भी इट इज़ लाइक, यू नो, शी हाथ पैर मार रही है वो. आप समझ रहे हो. सी, वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम बीइंग क्लूलेस अबाउट आवर ड्रीम्स. When we start from our scratch, we are all clueless, equally clueless about our dreams. But यहाँ पे देखो, उस cluelessness में भी, उस darkness में भी, उस directionlessness में भी, she is trying to find the direction. इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ, क्या है मैप, वहाँ मुझे जाना है. You know, she is like finding her way to her destination. तो यहाँ पे तो बहुत confusion है. लेकिन जैसे जैसे क्योंकि आप इसी को एनर्जी दे रहे हो, इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि इस कंफ्यूजन में भी, इस डायरेक्शनलेसनेस में भी, इस डार्कनेस में भी क्या हो रहा है कि रास्ते बन रहे हैं. कहाँ रास्ता बन रहा है, ये तो पास्ट, ये तो बैक ऑफ द डेक में उसके पास्ट का बता रही हूँ. पर क्योंकि शी कंटिन्यूड टू फोकस ऑन दिस एंड वी नो दैट वेर एवर आर इंटेंशन गो, द एनर्जी गोज. तो इस डार्कनेस में भी क्या हुआ, रास्ते बनने लगे. क्या रास्ता बना, यहाँ पे देखो, शी बिकेम मोर सॉर्टेड. कि यहाँ पे क्या है कि वो ज़मीन पे खड़ी है, यहाँ पे उसके मैप्स हैं, कन्फ्यूजन है बहुत. लेकिन जब वो आगे बड़ी हुई तो क्या हुआ कि यस, शी क्लाइम्ड द, उसको लगा कि ठीक है, ग्राउंड पे रह के तो मुझे कहाँ तक जाना है मुझे पता नहीं चलेगा, तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्लाइम्ब दिस टावर मे बी. एंड यहाँ पे क्या हुआ, देन शी क्लाइम्ड द टावर. तो टावर पे क्लाइंब
when she climbed, she could see even further. She could see the horizon, she could see the way, and then it was like कि, तो कहने का मतलब है कि she was very persistent in her dream. Even though उसको कुछ नहीं आता था, उसको लगता था कि कोई talent तो कुछ भी नहीं है, but जो भी है, I want to do that. Okay, so she, so it's more like universe started making way for her. How universe started making way for her? Because she was constantly putting her intention to what she wanted, and therefore universe was clearing the way for her. तो यहाँ पे हालांकि अगर आप देखो तो टावर को देख नहीं रही है, बट क्योंकि शी वॉज फोकसिंग हर इंटेंशन ऑन दिस, तो उसको पता चला कि यहाँ से आगे जाके यहाँ पे टावर पे खड़े होंगे तो शायद यहाँ से इस छोटे से जगह से मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है, कैसे क्या जाऊँ वो चीज़ है. तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. यू नो, स्टेपिंग आउट, फन डू, टोटली कंफर्टेबल विथ हर वट एवर शी इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, फाइन विद दैट. शी इज़ नॉट नोइंग दिस दैट, फाइन विद दैट. शी इज़ अ लिटिल प्लम्पी, शी इज़ अ लिटिल curvy, maybe she is little healthy, she is fine with that. तो totally authentic self. तो यहाँ से जब आप निकलते हो as a page of pentacles, totally confused, today she is the king of pentacles, like more people seeing her like this, and she is very proud of from where she came and what she has achieved. काफ़ी उसने अपनी एक स्टेबिलिटी भी क्रिएट कर ली है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल इज समबडी हु हैज़ कम अ लॉन्ग वे, हैज़ बीन वेरी पेशेंट, हैज़ बीन वेरी ग्राउंडेड, हिम्मत नहीं हारा है. यू नो, ही हैज़ ऑलवेज बीन हिमसेल्फ, ही नेवर ट्राइड टू बी लाइक किंग ऑफ वॉन्स, क्योंकि दिस हैज़ अ वेरी अर्दी फीलिंग. आप बोल सकते हैं कि गवई जैसी एनर्जी, स्पेशली विद दिस कार्ड है यहाँ पे. यू नो, यू हैव दिस काउ एंड ऑल दीज थिंग्स. तो किंग ऑफ पेंटिकल्स makes big being king of pentacles, staying grounded. He never tries to be king of sword. ठीक है, तो being very earthy, very grounded, being very, you know, simple, you have made you have made name for yourself. You have made yourself a brand. People love you. People love you for your grounding, who you are, simplicity, and ये सब चीज़ें. So she has made it big. ऑलराइट, एक चीज़ जो हमने अभी एनर्जी तुरंत डिस्कस की है, वो क्या किया है हमने कि शी ऑलवेज वांटेड टू गो आउट. ये इस पे मैंने काफ़ी डिस्कस किया ना, काफ़ी एलैबोरेट किया. यहाँ पे भी वो एनर्जी आ रही है कि शी वांट्स टू मूव, शी वांट्स टू गो अवे फ्रॉम समवेयर. ओके, यहाँ भी रास्ता देख रही है, यहाँ भी रास्ता है, और शी इज़ काइंड ऑफ वंडरिंग कि इस रास्ते जाना है, उस रास्ते जाना है. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि शी वांट्स टू गो आउट. ओके, now why is she so hell-bent in going out, stepping out of her comfort zone, stepping out of her place, her town? क्यों? क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस था किसी चीज़ का उसके, वो जहाँ पे भी थी. You know, she was very stressed out. And why is she stressed out? We don't really know this. We can find this, look into this. But जहाँ पे भी थी वो, वहाँ पे वो खुश नहीं थी. There was a very stressful situation wherever she was. And probably that is why she wanted to move out of that place. Okay, that could be Punjab. maybe her family, don't know. यहाँ पे भी देखिए उसकी एटीट्यूड जो है, it's like, she is moving away from some place she doesn't wants to be there. She is kind of running away. In fact, she is kind of, escaping from there. रात में छुप छुप आके वो वहाँ से निकल रही है. अब यहाँ पे स्ट्रेस है, हमें पता है, पर दोनों का क्या कनेक्शन है, we will have to see. And yes, where is she going? She is going behind her dreams. Knight of Pentacles. आप देख रहे हैं Page of Pentacles, Knight of Pentacles, and then you have the King of Pentacles. And here I just told you this is Nine of Pentacles, which is very similar energy to Queen of Pentacles. यानी कि इतना ज़्यादा Pentacles का कार्ड, and that too, Page, Knight, almost Queen of Pentacles and then the King of Pentacles. So ये चारों के चारों ऑलमोस्ट 3 कोड कार्ड्स तो हमारे पास हैं ही. पेज ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स तो आ ही गया है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स को की एनर्जी वेरी सिमिलर टू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो 3-4 पेंटिकल्स का सारा कोड कार्ड आ गया है. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शी इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग एट ईच एंड एवरी step of her life, and she is evolving and she is growing and she is positive and future focused girl. कैसे पता चल रहा है? देखिए यहाँ पे पेज है, टोटली कंफ्यूज है. मैंने कि मेरे में वो टैलेंट है बॉम्बे में जाके करने का, ये भी नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि you don't know anything about, you don't know English, but you want to be like
you want to write, you want to do, you want to be a big, write a philosophy in English, or you want to be, you write some good philosophical book in English, that kind of a thing. तो आप समझो कि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता है, पर हमारे ड्रीम्स हैं, यानी कि कॉन्फिडेंट बहुत है ये. Okay, she has a because of her childlike because of this foolish card, childlike behavior, she is very vibrant also, and people are like how she can be so natural and she can be so बुद्धू type, and yet how cute is that. तो वो चीज़ें हैं. तो यहाँ पे देखिए पेज है, यहाँ पे टोटली वो क्लूलेस है अपने करियर के बारे में, अपने बारे में, बट शी हैज़ अ बिलीव इन हर थिंग्स. यहाँ पे शी इज़ लुकिंग आउट. यहाँ पे क्या है, शी इज़ बेसिकली, ये दोनों कार्ड साथ में रीड करते हैं, तो शी इज़ रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग विच इज़ कॉजिंग हर स्ट्रेस, एंड शी इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ ड्रीम, वेरी प्रोग्रेसिव. तो अब हम यहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या समझ सकते हैं. एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि कुछ तो उसको परेशान कर रहा था, बट शी वॉज नॉट समबडी हु विल bow down to it. ठीक है, she was progressive and she was like for future focus. वो she escaped from there, she is more action taking person and running behind her dreams. तो यहाँ पे पेज से ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई, और फिर यहाँ पे तो कॉन्शियस लेवल में ब्यूटिफुली फुल ग्रोन किंग ऑफ पेंटिकल्स नाइसली सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, enjoying the फ्रूट ऑफ हिज हार्ड वर्क, द केक. ओके, तो ये चीज़ है. तो हर लेवल पे जब भी, क्योंकि क्या है ना कि इनोसेंट लोग क्या होते हैं कि वो अपने आप को बहुत तेज़ नहीं समझते हैं ना, तो वो दूसरों से लर्न करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, राइट. तो ये भी है, शी इज़ वेरी चाइल्ड लाइक, इनोसेंट एंड ऑल. सो शी इज़ ऑल्सो वेरी ओपन टू लर्निंग थिंग्स, एंड दैट इज़ वाई वी सी कि, क्योंकि मैंने आज तक कितनी रीडिंग की है, कभी भी किसी का इस तरह का नहीं आया है कि ऑल द पेंटिकल्स कार्ड एक के बाद एक सारे रीडिंग्स में आ गए हों, एंड इट्स मोर इन अ प्रोग्रेसिव वे. यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में पेज पेंटिकल्स है, वेयर शी इज़ फीलिंग टोटली क्लूलेस. उसे पता भी नहीं है कि उसके लाइफ में क्या चाहिए, बट हाँ कुछ तो है कि उसको चाहिए, कैसे चाहिए, कर पाएगी, टैलेंट है नहीं है, ये सब उसको नहीं पता है. यहाँ पे देख रहे हैं कि शी इज़ टेकिंग एक्शन, मूविंग, it's from page, she has become a knight of pentacles. She is taking small little actions, patient, she knows that she has, उसके पास कोई अर्थ शैटरिंग टैलेंट नहीं है, या फिर अर्थ शैटरिंग सोफिस्टिकेशन नहीं है. शी इज़ नो मिस इंडिया, मे बी शी हैज़ नो हाइट, मे बी शी इज़ लिटिल प्लम्पी, तो उसको पता है हर चीज़ है. तो बट वॉट शी इज़, शी हैज़ द पेशेंस, शी हैज़ द इंटरेस्ट, शी हैज़ द कीननेस, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ टेकिंग बेबी स्टेप्स, छोटा छोटा बेबी स्टेप्स लेके हम आगे बढ़ रहे हैं अपने ड्रीम के पास. और वाओ, वी गेट टू लर्न फ्रॉम दिस गर्ल कि अगर आप अपने आप पे विश्वास करो, यू बी योर सेल्फ, यू बी योर ऑथेंटिक self, be confident of who you are. Maybe you are not earth shattering talent and all, but you are fine with who you are. तो क्या होता है कि रास्ते बन जाते हैं, and she is here sitting in her throne enjoying the cake, which is very interesting, which is beautiful, I think. तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं. यहाँ पे भी देखो, she wants to move out. Okay, ऑल राइट. अब यहाँ पे हमें आया है एस ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स, एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स. 6 ऑफ कप्स है वहाँ पे. एक्सक्यूज मी. यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड तो डेफिनेटली बता रहा है कि देयर वाज समथिंग वेरी स्ट्रेसफुल इन आवर लाइफ बिकॉज ऑफ विच शी हैड टू रन अवे, शी हैड टू लेट गो एंड मूव आउट ऑफ इट. तो ये भी हमें पता चलता है ना कि व्हेन थिंग्स गेट, बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ डिप्रेशन, लॉट ऑफ समथिंग दैट इज वरिंग यू. और व्हेन शी इज मूविंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, तो शी इज समबडी हु इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ हर सिचुएशन. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम उसकी जो सेंटर में एनर्जी आ रही है वो कैसी एनर्जी है, वेरी चाइल्ड लाइक, वेरी फन लविंग, वेरी क्यूट, वेरी इनोसेंट, वेरी इमोशनल, वेरी इम्पल्सिव. बट यहाँ पे व्हेन शी इज सो, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, देयर इज समथिंग दैट स्ट्रेस्ड हर. ओके, एंड शी वॉज, पर यहाँ पे स्ट्रेस होने पर ऐसा नहीं है कि उसने हाथ पैर छोड़ दिया या फिर शी गेव अप. क्योंकि आप बच्चे हो, यू आर चाइल्ड लाइक, यू डोंट नो हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ सिचुएशन. इट्स नॉट लाइक दैट.
तो she is childlike and fun and all, but she's not buddhu or foolish as such. She is a mature woman at heart. She knows how to do things. She knows how to take decisions for herself, and even feeling a little hesitant, how to step out of your comfort zone and keep on moving forward, जो कि उसने किया भी, right? तो ये भी चीज़ उतना ही important हो जाता है उसके personality में. अगर नहीं होता तो we wouldn't see her progressing from page to pentacles to queen to king. ये वही कर पाता है जिसका बहुत ही ज़्यादा एक ग्रोथ माइंडसेट रहेगा, बहुत ही हम्बल रहेगा, क्योंकि आपको जब लर्न करना है, व्हेन यू हैव टू लर्न फ्रॉम समबडी, योर ईगो हैज़ टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. You have to have the humility. You should know that okay, I am standing at this level. I have to learn a lot. तो मुझे लोगों से सीखना है. तो therefore I should be ready to learn from people. And that is why she is making some, and of course she is a very quick learner, क्योंकि एक ही रीडिंग में उसने हर स्टेज को पार करके किंग ऑफ पेंटिकल्स पे बैठ गई है वो. तो she is a very quick learner. She is very humble. She is learning. She has a good rapport with people, and she met supportive people also, okay, because of her nature. People always liked her. People always gifted her things because इसकी पर्सन, क्योंकि 6 of cups का कार्ड है. Cups is emotion, 6 is balance. तो जितना ये दूसरों को, because of course because of her authenticity and all this, people love her for who she is, very original, very out of the box, and people बोलते हैं ना कि जैसे वर्ल्ड इज आवर इमेज, मिरर इमेज होता है, जो हम होते हैं वही हमको मिलता भी है. तो बिकॉज ऑफ अ पर्सोना और जो भी है, तो शी ऑल्सो वॉज वेरी लकी. पीपल वर गिविंग हर द सेम लव व्हाट शी वॉज एक्सूडिंग फ्रॉम हर हार्ट. तो यहाँ पे देखिए हार फ्लावर्स देते हुए पीपल, शी वॉज लाइक रियली पैम्पर्ड. तो हमने देखा भी कि तो मे बी शी इज अ काइंड ऑफ अ गर्ल नो वेर हु पीपल रियली लव, एंड या she receiving lot of love, gifts, that kind of a thing for who she is, and she is nicely receiving here also. All right, चलिए देखते हैं आगे. Oh my goodness, we have how many cards? So this is it. Shahnaz, Gill, anything? Attachments to result and obsessive thinking. Okay. Surrender the fear. Surrender frustration. तो यहाँ पे देखिए frustration था, यहाँ पे जो स्ट्रेसफुल चीज़ें थी, यहाँ पे भी वो किसी चीज़ से बच के जो भाग रही है ना, बच के भाग रही है. शी इज़ टेकिंग द एक्शंस. तो देयर वाज सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन हर लाइफ. सरेंडर द फियर ऑफ चेंज. लेट गो ऑफ द फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योर सेल्फ. स्टे इन द मोमेंट. फोकस ऑन द solution and celebrate every baby step forward. Every baby step forward. This is exactly what we talked यहाँ पे, कि she is moving, she is taking small steps to her dreams. Dreams उसको हमेशा चाहिए थे. Anything will cause, stepping out of your comfort zone is very always difficult. तो वही मैं बता रही थी कि यहाँ पे शी इज़ टोटली क्लूलेस. अब जब आप क्लूलेस होंगे, आपको डायरेक्शन नहीं दिखेगा, तो एंड यू हैव अ बिग ड्रीम, तो आपको फियर होगा ही होगा. देयर इज़ नो question of you not having a fear. Anybody going through a chain has a fear, but it's only that you have to overcome that fear. तो यहाँ पे exactly वही बोला जा रहा है, taking baby steps to her frame. ठीक है, मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, मैं क्या करूँगी कि मैं वहाँ पे टावर पे जाके खड़ी हो जाती हूँ, शायद वहाँ से कुछ दिखेगा. एक लंबा छलांग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मे बी शी इज़ नॉट दैट थिंग कि शी कैन डू अ लंबा छलांग, बट छोटा छोटा स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड इन अर लाइफ. फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे किसी चीज़ का डेफिनेटली दिखा रहा है, ओवर थिंकिंग स्ट्रेस दिखा रहा है, ऑब्सेसिव थिंकिंग भी है यहाँ पे. तो मे बी शी कुड समथिंग रिलेटेड विद जब आपके बड़े ड्रीम्स होते हैं. यहाँ पे हमने क्या देखा है कि शी ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टेप आउट ऑफ हर प्लेस. शी वॉन्टेड टू गो आउट. शी वॉन्टेड टू अचीव समथिंग फॉर हर सेल्फ. शी वॉन्टेड टू स्टेप आउट बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. यहाँ पे कुछ चीज़ है जो उसको स्ट्रेस दे रहा है, यहाँ से वो बच के भी निकल रही है. तो यहाँ पे कुछ तो एक्सटर्नल स्ट्रेसफुल सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि है.
बट अदर देन दैट शी वॉज ऑलवेज वेरी फोकस्ड इन वॉट, हमने बात किया ना कि शी वॉन्टेड दैट टू क्रिएट दैट लेगेसी, शी वॉन्टेड यू नो फ्रॉम starting from scratch and to this journey she wanted to create that stability for herself. तो वहाँ पे ही आपको बताया जा रहा है obsessive thinking, how will it happen, how will it happen. हमने बात किया actually कि her intuition, her focus was always on how to make it happen. और हो सकता है कि ये ऑब्सेसिव थिंकिंग में बदल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड इज ऑब्सेसिव थिंकिंग, इज थिंकिंग टू मच, टेकिंग स्ट्रेस ऑफ समथिंग, सो मे बी टेकिंग अ स्ट्रेस ऑफ हाउ टू मेक बिग, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड ज़्यादा है, सॉरी, तो इट इज़ मोर अबाउट यू नो रियलाइजिंग योर ड्रीम इन द 3D, नाम, शोहरत, पैसा, अपने एम्बिशंस, ये सारी चीज़ें को करने का वो चीज़ है. टेम्पटेशन भी है यहाँ पे, सो टेम्पटेशन इज लाइक यू नो फॉलोइंग इन लव विथ एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, एब्सोल्युटली इट कैन बी. सो यस, टेम्पटेशन, यू नो, टेम्पटेशन फॉर लव, मे बी फॉलोइंग इन फॉर पीपल यू लाइक, तो वो चीज़ें हैं. ओके, चलिए आइए हम यहाँ से पर्सनैलिटी रीड कर लेते हैं. Guidance coming for all of us for Shahnaz Gill, her personality. Shadow attribute, shapeshifter. Okay. Okay, let me read. Skill at navigating through different level of consciousness, ability to see the potential in everything. Yes, shapeshifting, you know, very skilled to move from one stage to another stage and you know recognizing the potential in everything. हमको, मुझे लगता है कि हमने ये बात ऑलरेडी बात की है यहाँ पे कि how she moved from page to pentacles, pentacles to queen of pentacles to king of pentacles, and she is not getting frustrated about all those things. She was frustrated when she was stuck in the, you know, in the past when she was not moving out of her place. यहाँ पे शी इज़ रिकग्नाइजिंग कि हर एक चीज़ उसको कुछ ना कुछ सिखा रहा है. शी इज़ हम्बल टू लर्न इनफ, लर्न करके आगे बढ़ने का, क्योंकि वो हर स्टेप पे लर्न कर रही है, आगे बढ़ रही है, शी इज़ इन द मोमेंट, आगे बढ़ रही है. तो शी इज़ वेरी गुड विद दैट, ये ऑलरेडी हमने बात कर ली है. सो वी हैव अ कार्ड हियर, मेडिटेटर. व्हाट इज दिस टेलिंग? Gift for negotiating fairness and strategy in personal and professional life, respect for both sides of an argument. Absolutely, यही तो हमने यहाँ पे बात किया ना कि yes, she is fine with who she is. देखिए, आप you only go, you know, you only hurt below the belt, or you play dirty, or you shout, or you have to raise your voice when things go out of control. You know, a powerful person doesn't ever has to do that. तो यहाँ पे वही चीज़ है. वो मे बी शी डजंट हैज़ ऑल दैट अर्थ shattering talent to make big in the showbiz and the glitz and the glamour world, but इसका ट्रम्प कार्ड क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी एंड द फैक्ट दैट शी इज़ फाइन विथ व्हाट शी हैज़ एंड हु शी इज़. तो क्या होता है कि इसको चीज़ें ना उस तरह से लाइक शी इज़ अ वेरी गुड नेगोशिएटर. यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि people are liking her for who she is. She's very good. She's very good to sell her innocence. Not really sell her innocence, but you know, kind of people accepting her for who she is. Respect for both the sides. यहाँ पे वही चीज़ है. बिग बॉस में भी शायद हमने देखा था कि she is fine with it, you know. So that is what it is. That is what I think. We should take one more card here यहाँ पे शहनाज गिल पे. Okay, we have this card, Gambler, and what is this telling? Willingness to follow intuition even when others doubt you. And how accurate is that, guys, right? हमने शुरू से ही बात किया कि you know she is, यहाँ पे वो पेज ऑफ पेंटिकल्स है जो कि डार्कनेस में है. उसको पता ही नहीं है कि, उसको पता है कि उसकी कोई ड्रीम है, पर उसको कर सकती है पूरा, नहीं कर सकती है पूरा,
क्या वो does she fits the bill, that kind of a thing, उसको नहीं पता है. But she is like, she is a gambler. She is gambling on her dreams, and that is why what is she doing? She is moving out of क्योंकि वो gambler है ना, तो gambler क्या होता है? Gambler obsessive होता है. When you play this, when you do this gambling, you are obsessive. You are operating from obsession कि इस बार जीत जाऊंगा, इस बार जीत जाऊंगा, right? एक obsession हो जाता है. Gambling and obsession is very synonymous. और यहाँ पे जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको दिख रही है ना वहाँ पे उसकी, और ये सब जो हमने बात किया यहाँ पे, ऑब्सेसिव थिंकिंग जो बन गई है उसकी, इंट्यूशन भी देखो आ रहा है यहाँ पे, ऑब्सेसिव थिंकिंग जो आया है हमें, संडर अटैचमेंट टू रिजल्ट, तो इसको ये बनना था और ये बहुत ही ऑब्सेशन जैसा होते जा रहा था. एंड देन शी काइंड ऑफ channeled it and moved out of her place to getting things started. एंड यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि विलिंगनेस टू फॉलो योर इंट्यूशन, बिल्कुल शी हैज़, आई थिंक शी दिस गट फीलिंग है उसका, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट हैविंग सो मच ऑफ टैलेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, तो व्हाट इज रियली पुशिंग यू फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन? कुछ तो होना चाहिए ना कि आपको आगे बढ़ाए. तो इट इज़ हर इंट्यूशन टेलिंग हर दैट नो, आई कैन डू इट, या समहाउ इट विल हैपन, यूनिवर्स विल अरेंज इट फॉर मी, समहाउ इट विल हैपन. तो यहाँ पे शी इज़ गैम्बलिंग ऑन हर ड्रीम्स. गैम्बलिंग क्यों? क्योंकि मे बी शी थिंक्स शी डजंट हैज़ द टैलेंट टू फिल, मिस इंडिया नहीं है, मिस यूनिवर्स नहीं है बहुत, एंड ऑल दोज थिंग्स. तो शी इज़ गैम्बलिंग ऑन दैट, मेकिंग वे फॉर हर ड्रीम्स. That is beautiful. She has a gambler, and gambler थोड़े obsessive होते हैं. But because she succeeded, yes, she was lucky to kind of succeed, and things happening for her also. क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखो तो उसको she is receiving something. So she has been very lucky in that way कि जो भी था, जैसे भी जिस रास्ते भी वो गई, क्योंकि यहाँ पे वो रास्ता खोज रही है, तो वो जिस रास्ते भी गई लोगों ने उसको प्यार दिया. एज अ सिद्धनाज भी लोगों ने उसको प्यार दिया. उसने जो भी किया, लोग, पीपल वर लाइक रिसीविंग हर, पीपल वर हैप्पी, पीपल वर शावरिंग हर विथ लव. सो शी इज़ काइंड ऑफ रिसीविंग ऑल द लव, शावर, ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स, ब्रांड इंडोर्समेंट, और जो भी है, पैम्परिंग ऑल्सो, शी इज़ रिसीविंग इवन द पैम्परिंग, शी इज़ रिसीविंग द लव and all those. It's more like, you kind of make it. Yes, she's a negotiator, right? We talked about this negotiator. Big Boss में ये बहुत चीज़ें थोड़ी सी पता देखने को मिलता है कि how she was kind of, कि this guy is my. Okay, so she kind of negotiating. No, and finally Siddharth bhi is like, okay, he gave up, like, okay, fine, you are my girl. She was very tough negotiator there. So yeah, I remember ki she was like totally into Siddharth, but when this Gautam, that other winner, Gautam, what was his name, Gautam Gulati came, she was kind of hugging him also and jumping on him and something like that. Okay, so yeah, like, बच्चे कैसे होते हैं कि मुझे हर चीज़ चाहिए, तो उसको सिद्धार्थ भी चाहिए था, बाकी वो लोग गए तो उसमें भी उसको लाइमलाइट चाहिए था, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो इन दैट वे, यस, फूल इन रिवर्स, इमेच्योर बिहेवियर. अब यहाँ पे कोई और होता तो वो इस तरह का काम नहीं करता ना, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू आर लाइक सिद्धार्थ, तो व्हाई आर यू व्हेन दिस गुलाटी केम, यू आर लाइक हेड ओवर हील्स बिहाइंड हिम. दिस इज अ वेरी चाइल्ड लाइक बिहेवियर, राइट? तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है कि येस, वेरी ऑनेस्ट, वेरी चाइल्ड लाइक, बट एट टाइम्स वेरी इमेच्योर टू. बट देन व्हाट, अगेन गोइंग बैक टू सिद्धार्थ, टफ नेगोशिएटर somehow, नहीं, मैं तो negotiating is not always like you sit on the table and negotiate hard. Sometimes it will be like, my love is for you, I will not eat if you don't eat. वो भी सब तो एक तरह का blackmail ही है. तो somehow through love or through hook or crook, she is a good negotiator. All right, so I think that is what we have for her. Childlike, eternal. तो ये वाला कार्ड भी आ ही गया है इसका ना, because she is very childlike. क्या है? डिटर्मिनेशन टू रिमेन यंग इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू सी थिंग्स विथ फ्रेश आईज. सो दिस इज व्हाट इट इज, क्वाइट चाइल्ड लाइक. सो her this childlike thing also makes her very fresh and very interesting,
out of the box, but also it makes a little immature at times. So this is the guidance on Shahnaz Gill, guys. Do let me know what you feel about the reading, and thank you so much for liking. Please like the video if you like the guidance, and please subscribe, and thank you so much for watching. Thank you for your time, thank you for your energy, thank you for your comments, and thank you for your vibes. I will see you again. Take care. Bye for now.